Praise the Lord, everyone. मैं सबों से प्रेज लॉर्ड कहता हूँ। We thank God for giving us this opportunity to worship Him. आज की शाम को खुदा की इबादत करने के लिए जो खुदा ने हमें मौका दिया है, इस मौके के लिए कर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। Once again, even as before we turn to the scriptures, खुदा के कलाम को देखने से पहले let's look to the Lord in prayer. दुआ करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, God of grace, mercy, and peace, we once again thank you for this evening time when we could spend time in Thy presence, dear for Lord, even as we seek to worship You in spirit and in truth. Help us so that we can bring a worthy worship unto You this evening, dear for Lord. And we beseech You to be exalted over all the worship that we offer. Once again, Lord, even as we turn to the scriptures for help, for encouragement, speak to us very clearly from the throne of grace. In Jesus' precious name we pray. आमीन। Dear friends, one of the most outstanding characters that really encourages us is the character of Abraham. अजीजों, हम देखते हैं कलाम में से कि एक किरदार जो है कलाम में से जो हमारी जानफिशानी रूह अफ़ज़ाई करती है, वो है अब्राहम का किरदार। Today, I just want to meditate on the 4 altars he has set up in his life. आज के दिन हम 4 मज़बे के बारे में देखेंगे जिन्हें अब्राहम ने अपनी जिंदगी में बनाया था। It's not possible to study all the 4 altars in one go. एक ही दफा में 4 मज़बे के बारे में मुताला करना तो मुश्किल है। As the Lord leads in the coming weeks, we shall study each altar. मुस्तकबिल में खुदा की रहनुमाई के मुताबिक हम एक-एक बारी-बारी से एक-एक मज़बे के बारे में पढ़ेंगे। Let me tell you, the most beautiful worship comes from people who have known loss, defeat. मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अजीम इबादत उन लोगों के दिल से निकलती है जो अपनी जिंदगियों में हार को भी चखा था। Who have known struggles, who have known sufferings. तकलीफों से या मुश्किलात से गुजरे हुए लोग जो हैं। And out of all these things, out of all these depths, they have known God in a true sense. और इस तरह वो उतर चढ़ाव करने के बाद भी, बहुत नीचे तक जाने के बाद भी, उतर जाने के बाद भी अपनी जिंदगियों में खुदा के पास आके उसकी इबादत करते हैं। Abraham's life is known for, we know him for 2 things. अब्राहम की जिंदगी में हम 2 बातें खास करके देख सकते हैं। It's faith and obedience. पहली बात है ईमान, दूसरी बात होती है फरमान बरदारी। One of the ways he expressed his confidence, he expressed his worship is by building altars. अपनी जिंदगी में अब्राहम ने हमेशा अपने ईमान को मज़बे बनाते हुए जाहिर किया था। These were more than the physical structures. मज़बा का मतलब ये नहीं है कि वो किसी फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाया है, उससे बड़ा है ये बात। They were divine places of worship. वो तो इबादत खाने की तरह ही इबादत की जगह होती थी। And these are the altars where he had divine encounters. वहाँ पे इन मज़बों के पास वो खुदा से मिलता भी था। And it is at these altars God made covenants with him. और इन मज़बों के करीब ही खुदा ने अब्राहम से वादे या अहद करता था। And each altar that he built was marked a memorial for him. और हर एक मज़बा जो अब्राहम ने बनाया था उसके लिए वो एक यादगार मज़बा बनता था। It marked a significant moment in his spiritual life. उसकी रूहानी जिंदगी में एक बहुत यादगार हिस्सा वो मज़बा बनता था। By setting up altars or building altars, he reflected his obedience. इस तरीके से मज़बे बनाते बनाते अब्राहम अपनी फरमान बरदारी भी दिखाते गया। It represented his gratitude towards God. खुदा के निस्बत उसकी शुक्रगुजारी जो है वो भी मज़बे में झलकता था। And his personal commitment to God's command. इतना ही नहीं बल्कि खुदा के फरमानों के निस्बत उसकी फरमान बरदारी भी उसमें दिखाई देती थी। If you read the first 2 verses of the Bible, that's Genesis 1 and 2. अगर हम बाइबल की पहले 2 आयतें 2 पहले बाब 1 और 2 देखेंगे, where we see God's creation, God's creation of man. यहाँ पे खुदा की तख्लीक हम देखते हैं और उसके बाद इंसान को खुदा ने बनाए वो भी हम देखते हैं। Everything was good. और ये सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। But the tragedy occurs from chapter 3. लेकिन बाब नंबर 3 से हम देखते हैं कि वहां से ये ट्रेजेडी जो है शुरू होता है। At least up to chapter 12. हाँ, और 3 से लेकर 12वां बाब तक ये गुनाह का जिक्र और ये तकलीफें, ये ट्रेजेडी जो है वो चलता है। In chapter 3 we see the introduction of sin. बाब नंबर 3 में हम देखते हैं कि गुनाह का उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसकी तारुफ होता है। Adam and Eve, they disobeyed God. वहां पे हम देखते हैं कि आदम और खवा जो हैं ये इन दोनों ने खुदा से नाफरमानी की। And in chapter 4, Cain
murdered his brother Abel, and he lied about it. और बाब नंबर 4 में हम देखते हैं कि कैन जो है वो अपने भाई को कत्ल कर देता है और जब खुदा ने पूछा तो वो झूठ बोलता है। And in chapter 6 to 8, और उसके बाद अगर हम देखें तो 6 से लेकर 8वें बाब तक we see humanity became so corrupt that God has to cleanse the world. यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान बहुत गुनहगार बन जाता है, इस वास्ते खुदा इंसान को रूए जमीन से मिटा देता है। He brought about a flood so that all the people can be removed from the face of the earth. वो बहुत बड़ा सैलाब लेकर आता है ताकि हर एक इंसान, हर एक जानदार भी हलाक हो जाता है, So that he could make a new beginning. ताकि तब से खुदा एक नई शुरुआत शुरू करता है। And in chapter 9 we see Noah got drunk and his nakedness was exposed to Ham. और his son. उसके बाद हम देखते हैं कि बाब नंबर 9 में कि नोअह जो है वो मैनोशी करता है और उसके बाद उसका नंगापन उसका बेटा खाम देखता है। In chapter 3 we see the defiance of the people. और chapter 10. और बाब नंबर 10 में हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग बढ़ते हैं और खुदा से दूर चले जाते हैं। Let's see, they said let's build a city and a tower so that we can reach unto the heaven. किस तरीके से खुदा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आओ हम सब मिलकर आसमान तक पहुंचने वाला मीनार या बुर्ज बनाएं। And God had to send a confusion and to dispel their thoughts. और तब खुदा ने क्या किया था, उनके दरमियान खुदा ने गड़बड़ी पैदा की और इस तरीके से उनका लिसान जो है, बोली जो है वो गड़बड़ हो जाती है और वो लोग वहां से परागंदा हो जाते हैं। Only from chapter 12 things started looking bright. और उसके बाद बाब नंबर 12 से ही बाकी चीजें जो हैं कलाम में जो हम पढ़ते हैं वो बहुत अच्छी चीजें जैसे बनती जाती हैं। And from the end of chapter 11 और 11वां बाब के आखिरी आयतों में and from then onwards और उसके बाद भी we find a lovable character called Abraham. यहाँ पे हम एक बहुत प्यारा इंसान को देखते हैं जिसका नाम है अब्राम। And from there he started his life on a very high note. और यहाँ पे अब्राहम अपनी जिंदगी शुरू करता है और आगे बढ़ते ही जाता है। He built 4 altars which are icons of worship. उसने 4 मजबे बनाया था और ये 4 मजबों का जिक्र इबादत से ताल्लुक रखता है। We all see buildings in our cities which we call it them as icons. और हमारे शहरों में भी हम बहुत बड़े इमारतों को देखते हैं और उनको आइकॉन करके बोलते हैं। Charminar is such an iconic building in our Hyderabad. हमारे हैदराबाद में चार मीनार जो है वो एक बहुत बड़ा आइकॉन है। And the new secretariat is also one iconic building that we all appreciate. और एक नया सेक्रेटरीट जो बना है वो भी हम सब उसकी भी तारीफ करते हैं कि वो भी एक आइकॉन जैसा बना है। Now what do we mean by setting up of an altar or building an altar? अब हम जानेंगे कि एक मजबे को बनाना या एक मजबे को मखसूस करने का बात उसका मतलब क्या होता है। When we build an altar, we are building a relationship with God. जब एक मजबा हम बनाते हैं या कोई बनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि खुदा से रिफाकत या शिराकत शुरू करना। Or in other words, we are linking up with God. मतलब ये भी होता है कि खुदा से लिंक अप हुआ है या जुड़ गए हैं। And these days when we visit any house, और आजकल अगर हम किसी घर जाएंगे, किसी से घर जाके मिलेंगे, the first thing they want to know is what is your Wi-Fi password. घर जाने के बाद, घर में दाखिल होने के बाद लोग अक्सर पूछते हैं, पहली बात ये पूछने लगे हैं कि आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड जरा बता दीजिए। They want to keep in touch with the outside world even when they are in a stranger's house. मतलब जब नए किसी के घर जाने के बाद भी दुनिया के बाकी लोगों के साथ रिफाकत में जुड़ के रहना लोग पसंद कर रहे हैं। Recently I visited my daughter's house in LA, Los Angeles. हाल ही में मैं भी लॉस एंजलिस गया था, मेरी बेटी के घर गया था। And I saw my son-in-law pasted that Wi-Fi password on the walls. और वहां मैंने देखा कि मेरा दामाद जी जो हैं उन्होंने अपनी दीवारों पर वाईफाई पासवर्ड करके वहां पे चिपका दिया है। So that anyone can come and they can link up to the Wi-Fi connection. ताकि जो कोई उनके घर में आए वो लोग वाईफाई पासवर्ड देखकर अपने फोन को लिंक अप कर पाएं। So when we set an altar, when we build an altar, we are linking up to God, building a relationship. तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि जब कभी एक मजबा बनता है तो उस मजबे के जरिए से खुदा से जुड़ना या रिफाकत में जुड़ना होता है।
There are two things that Abraham was constantly doing. अब्राहम अपनी जिंदगी में दो बातें या दो चीजें मुसलसल करते आया था। He is building an altar and erecting a tent. वो पहले एक मज़बा बनाता था और उसके बाद एक खैमे को भी वो खड़े करता था। When we say he erected a tent, it means he is establishing a relationship with the world. जब कभी हम कहते हैं कि उसने एक खैमा खड़ा किया तो इसका मतलब क्या है कि इर्द गिर्द दुनिया के लोग जो हैं उनके साथ वो रिफाकत में शामिल हो रहा है। Altar is made up of rocks, strong rocks, solid rocks. लेकिन मज़बे को अगर हम देखेंगे तो उसको बहुत ताकतवर या बहुत स्ट्रांग पत्थरों से वो बनाते हैं। When we establish a relationship with God, it should be solid rock. जब भी हम खुदा से अपने रिफाकत में शामिल होंगे तो वो रिफाकत या वो जुड़ना भी बहुत मजबूत रहना चाहिए। That's what we do when we come to the fellowship time. इसीलिए हम वैसा ही बर्ताव लेकर आते हैं इबादत के लिए शामिल होने के वक्त। While the altar is rock solid, जब एक मज़बा बहुत एक पत्थर जैसा मजबूत रहता है, a tent can be easily taken away. लेकिन एक खैमे को अगर हम देखेंगे तो उस खैमे को कोई भी आसानी से निकाल दे सकता It है। can be easily transported. एक खैमे को निकाल कर एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकते हैं। It means a loose relationship with the world. मतलब क्या है, दुनिया के साथ बहुत लूज रिफाकत या रिलेशनशिप। One great woman, Corrie ten Boom, she says, एक कोरी टेन बूम करके एक बहुत नामवार औरत है, वो कहती थी, I have learned to hold everything loosely so that God cannot, I will not allow God to take it by force. मैं हर चीज को, इस दुनिया की हर चीज को बहुत लूज पकड़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि खुदा को जब मुझ पर खुदा काम करेगा तो ऐसा खुदा को ना लगे कि मेरे हाथों से चीजों को निकालना मुश्किल हो। So with this introduction, we'll see what is the first altar that Abraham built. तो इस तारुफ के साथ हम देखेंगे कि पहला मज़बा वो क्या है जिसे अब्राहम ने बनाया था। That we read in chapter 12 of the book of Genesis and verse 7, which says, the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. So he built an altar there to the Lord who appeared to him. इस पहले मज़बे को हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 7 में हम देखते हैं, तब यहोवा ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा, यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई। So in the preceding verse 6, it says that what the place was Shechem. तो इसके आगे की आयतों में हम देखते हैं कि वो जगह जहां अब्राहम ने ये मज़बा या कुर्बानगाह बनाई थी, ये उसका नाम था शकेम। So the first thing he did to initiate his relationship with God is building an altar at Shechem. तो पहली बात जो अब्राहम शुरू करता है अपने रिफाकत खुदा से जोड़ने के लिए, वो शकेम में करता है कुर्बानगाह को बनाकर। By doing so, he started his spiritual journey. ऐसा करते हुए अपनी रूहानी जिंदगी या रूहानी सफर को वो शुरू करता है। By the way, how was his spiritual journey initiated? लेकिन अगर हम देखें तो उसकी रूहानी जिंदगी का सफर जो है वो शुरू कैसे हुआ था? It came from the call of God. वो खुदा के बुलावे से वो शुरू हुआ था। When God chooses a man, he calls him. जब खुदा किसी को चुनता है तो उसे बुलाता भी है। We see this in chapter 12 and verse 1. हम पैदाइश की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 1 में ये देखते हैं, Similar to the call of Abraham, we also have been called to become his children. अब्राहम की तरह हम भी खुदा से उसके फर्जंद होने के लिए बुलाए गए हैं। That's why Paul says, इसीलिए पौलुस रसूल ने लिखा है 2 Thessalonians थिस्सलुनीकी दूसरी chapter किताब 2, बाब नंबर 2 verses 13 and 14, और 13 और 14 भी आयतें, where Paul says, we should give always thanks to God for you, brothers and sisters, beloved by the Lord, because God has chosen you from the beginning of salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 and 14. 2 Thessalonians chapter 2 13 14। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह का जलाल हासिल करो।
Worship, as we know, is just like a clock on the wall. इबादत जो है वो सिर्फ दीवार पर रखा गया एक क्लॉक जैसा है। It has two hands, एक क्लॉक अगर देखेंगे तो दो हैंड्स होते हैं। the minutes hand and the seconds hand. एक मिनट्स हैंड होता है, एक सेकंड्स हैंड होता है। So worship involves praise that for what God is, तो इबादत में भी दो हैंड्स होते हैं, जैसे कि इबादत में शुक्रगुजारी, मतलब जो खुदा है वो जो है उस बात को लेकर खुदा का शुक्र करना। and secondly, thanksgiving for what He has done to us. और दूसरी बात यह है कि जो कुछ खुदा ने हमारे लिए किया था उसको लेकर शुक्र करना। That's why Paul says, "Give thanks because He has chosen you." इसीलिए पौलुस रसूल ने लिखा है यहाँ पे कि शुक्र अदा करो क्योंकि उसने तुम्हें चुना है। He has called you through the gospel. उसने खुशखबरी के जरिए से तुमको चुना है। What about the background of Abraham? अब्राहम का पस मंजर कैसा था? And in the book of Joshua, अगर हम देखेंगे यहोशुआ की किताब में chapter 24 बाब नंबर 24 and verse 2, आयत नंबर 2, he says, "Thus says the Lord, the God of Israel, from ancient times your fathers lived beyond the river, namely Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods." यहोवा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, तुम्हारे आबा यानी अब्राहम और नाखोर का बाप तेरह वगैरह कदीम जमाने में बड़े दरिया के पार रहते और दूसरे माबूदों की परस्तिश करते थे। So Abraham primarily was an idolater. तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अब्राहम शुरू में एक बुत परस्त था। Even the church at Thessalonica, they were also idolaters. इसी तरीके से थेसलोनिका में जो चर्च है या मोमिन हैं वो सब के सब भी बुत परस्त थे। That's why Paul says, when you heard the gospel, you turned from idols. इसीलिए पौलुस रसूल ने वहां लिखा था कि खुशखबरी को सुनने के बाद तुम लोग बुत परस्ती से बाज आए हैं। So dear friends, this is our salvation experience. अजीजों, ये है हमारी नजात का तजर्बा। Yes, a great calling. ये है बहुत अजीम बुलावा। We are called to be saints. हमें पाक होने के लिए या मुकद्दस बनने के लिए बुलाया गया है। That's what 1 Corinthians chapter 1 and verse 2 says. इसी बात को हम पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 1 और 2 में पढ़ते हैं। And again, 1 Corinthians chapter 1 and verse 9, it says, we are called to be in fellowship with the Son. और उसके बाद पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9 में पढ़ते हैं कि खुदा ने हमें उसके बेटे यीशुआ की शिराकत के लिए बुलाया है। So with the holy calling, we all have been called. तो इस तरीके से पाक बुलावा के साथ हम सबों को खुदा ने बुलाया है। And we are partakers of a heavenly calling. और इस तरीके से हम सब उस आसमानी बुलावे में हम सब मुश्तरिक हैं। When the call was given to Abraham, और जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया था, he didn't give any reasons. खुदा ने कुछ भी वजह दिया नहीं था। No explanations. कोई भी वजह खुदा ने दी नहीं थी। And he has not given any destination where he will be going. और खुदा ने ये भी नहीं बताया कि तुझे किस मंजिल तक जाना है। And he didn't give any single merit for which Abraham was called. और ये भी खुदा ने नहीं कहा कि किस वजह से खुदा ने अब्राहम को बुलाया था। It was purely an act of grace of God. सिर्फ और सिर्फ ये खुदा की बड़ी रहमत है, नेमत है। One of the greatest verses I love remembering again and again. बाइबल में से बहुत अजीम आयत एक है जिसे मैं हमेशा याद करते रहता हूँ। Paul says, brothers and sisters, consider your calling. वो है कि पौलुस रसूल कहते हैं कि ऐ प्यारे भाइयों, याद रखना कि तुम अपना बुलावा जो है उसे हमेशा याद रखना। Not many wise according to the flesh were called. इस दुनिया के मुताबिक जो आलिम लोग हैं, इल्मदार लोग हैं, उनको खुदा ने नहीं बुलाया। He didn't call the mighty, he didn't call the noble. इस दुनिया के बहुत हाकिमों को खुदा ने नहीं बुलाया या दुनिया के जोरावरों को खुदा ने नहीं बुलाया। He chose ordinary people like you and me. लेकिन खुदा ने आप और मुझ जैसे आम लोगों को बुलाया है। What a great privilege for us. ये बहुत बड़ा इस्तेखाक है ना हमारे वास्ते। When the call was given, what did Abraham do? तो जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया था तो अब्राहम ने क्या किया था? No questions to God. उसने खुदा से कुछ भी सवाल नहीं पूछा था। He simply obeyed. उसने सिर्फ और सिर्फ फरमान बरदारी दिखाई। He did not put any conditions also. कोई भी शर्त भी नहीं लगाए। And then possibly God must have said to Abraham, bring a bond paper. खुदा ने शायद अब्राहम से कहा होगा कि बॉन्ड पेपर ला।
I will make an agreement with you. मैं तेरे साथ एक अग्रीमेंट कर दूंगा, I will make a covenant with you. मैं तेरे साथ एक अहद बांधूंगा। And God committed to fulfill all the promises that He has given to Abraham. और इस तरीके से जो भी खुदा ने अब्राहम को वायदे दिए थे, उन सभी वायदों को खुदा ने पूरा किया था। And He will not go back on the agreement that He has done. और जो अहद खुदा ने अब्राहम से किया था, उस अहद से वो कभी पीछे हटने वाला नहीं है। Again, it's an act of grace. और फिर हम देखते हैं यहाँ भी इस अहद करने में भी खुदा की रहमत ही झलकती है। We know the familiar verse, He who promised is faithful. हम जानते हैं ना, कलाम में बहुत बड़ा एक आयत है, बड़ी आयत है, वो है जिसने वादा किया है वो वफादार है। So God just didn't call him, He makes a covenant. Secondly, तो दूसरी बात यह है कि खुदा ने अब्राहम को सिर्फ बुलाया तक ही नहीं, बल्कि बुलाया लेकिन अहद भी किया था उससे। and what is present in that covenant और agreement? उस अहद में या अग्रीमेंट में क्या था? He says, God says, I promise to bless you. वहां पे खुदा अब्राहम से कहता है, मैं तुझे बरकतें दूंगा और ये मेरा वादा है। And with the covenant, with the promises of blessing, He also gives Abraham a commission. तो ये इस तरह खुदा अब्राहम को बरकतों के वायदे देते हुए एक काम भी दिया था। He says, not only I'll bless you, but in you shall all the families be blessed. खुदा ने ये भी कहा अब्राहम से कि मैं तुझे बरकत दूंगा, बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि तुझ में दुनिया के सारी नस्लें मुबारक हो जाएंगी। What a privilege for us. हमारे लिए बहुत बड़ी इस्तेखाक है ना। We are the recipients of God's grace and God's promise of blessing. हम खुदा की नेमत को या खुदा की रहमतों को हमने पाया है और हम खुदा से ये सारी, हमारे खुदावंद में ये सारी चीजें पाई है। Before God can bless anyone, He blesses us. खुदा किसी को भी मुबारक बनाने से पहले या बरकत देने से पहले हमको उसकी बरकत देता है। We have had the election as saints. क्योंकि खुदा ने हम सबों को खुदावंद यीशुआ में मुबारक बनाकर, पाक बनाकर चुना है। We are adopted as His children. उसके फर्जंद बनाकर खुदा ने हम सबों को लेपालक बच्चे बना लिए हैं। We are accepted as His beloved. और खुदावंद यीशुआ में हम सबों को उसने अपने प्यारो करके उसने हमें मकबूल ठहराया है। He has redeemed us and forgiven us of all our sins. उसने हमारे सारे गुनाहों से हमें छुड़ाकर हमें नेको पाक बनाया है। And He did not stop at that point. और उसने सिर्फ वही नहीं रुका, बल्कि He wants to give us, show us the mystery of His will. बल्कि उसकी मर्जी का जो भेद है वो भी वो दिखाना चाहता था। He gives us an inheritance. उसने हमें एक बड़ी मिल्कियत बख्शी है। And sealing us with the Holy Spirit. और पाक रूह का मोहर हम पर लगाया है। So after the call of salvation, और इस तरीके से नजात के लिए बुलावा हमें देने के बाद we are called upon to grow in Christian virtues. हमारे यीशुई या क्रिश्चियन वर्चुस जो होते हैं उनमें बढ़ने के लिए खुदा हमें बताता है। We are called upon to serve God by our good works. हमारे नेक काम से, नेकोकारी से खुदा की खिदमत गुजारी करने के लिए हमें मद्दू किया गया है। What a privilege it is to serve the most high sovereign God. वो सबसे बड़ा कादिर मुतलक की खिदमत गुजारी करना कितनी बड़ी बात होती है ना। God's concern is that all the world should be blessed. खुदा की चाहत यह है कि तमाम दुनिया जो है वो मुबारक बन जाए। And so that His heavenly purposes may be fulfilled. ताकि उसकी आसमानी ख्यालात जो हैं वो सारे ख्यालात इस ज़मीन पर भी, उसकी मर्जी जो है वो इस ज़मीन पर भी पूरी हो जाए। Today I was talking about the one verse in Matthew 6:33. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 6 और आयत नंबर 33 से एक आयत उठाकर मैं आज सुबह बात कर रहा Seek था। ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. वहां पे क्या लिखा हुआ है? खुदा की बादशाहत को पहले ढूंढो, तब ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। We know about the life of Jacob. हम तो याकूब की जिंदगी को जानते हैं। Till the very fag end of his life, he never yearned for God's blessings. अपनी जिंदगी के आखिरत तक, इख्तिताम तक उसने खुदा की आसमानी बरकतों का ख्वाहा नहीं रहा। How to make ourselves rich? हम अपने आप को
दौलतमंद कैसे बना सकते हैं? There is a secret in the Bible. बाइबल में एक राज है। Proverbs 10:22 says, हम पढ़ते हैं अमसाल की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर "It is a 22। it is a blessings of the Lord that makes one rich, and He adds no sorrow to it." वहां पे लिखा हुआ है यहोवा ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। I saw an advertisement. मैंने एक इश्तिहार देखा था। Do you want to make rich? Question mark. वहां Do you want to become rich? Question वहां mark. पे लिखा हुआ था कि क्या आप दौलतमंद बनना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। Invest in this 25 mutual funds. तो यहाँ पे ये 25 म्यूचुअल फंड्स जो हैं इनमें आप लोग इन्वेस्ट कर दो करके लिखा हुआ And था। you'll be rich in 2025. तब आप 2025 में बहुत दौलतमंद बन जाओगे। That's the worldly method of getting rich. ये दुनिया का तरीका है जिससे लोग बहुत दौलतमंद होना चाहते हैं। But we should understand it's a blessings of the Lord that makes us rich. लेकिन हमें तो याद रखना है कि खुदावंद की बरकतें हैं जिससे हम अमीर बनेंगे। That's why he fought with a man for almost the entire night. इसीलिए उसने खुदा ने एक इंसान के साथ तमाम रात एक पूरा रात जद्दोजहद किया था At a place called Peniel. पेनुएल नाम की एक जगह में। Unless you bless me, I will not going to leave you. तब उस इंसान ने कहा था अगर तू मुझे बरकत देगा तभी मैं तुझे छोड़ूंगा जाने के लिए। There in that night he knew what it means to acquire God's blessings. तब उस रात उसे पता चला कि वो क्या होता है, वो बात क्या होती है कि खुदा की बरकत हासिल किए। Was he not rich? क्या तब तक वो अमीर नहीं था? Yes, he had lots of cattle, lots of wealth. सच तो यह है कि उसके पास बहुत सारी दौलत तो थी, But ultimately in his life he realized without God's blessings I will not be rich. लेकिन उसने अपनी जिंदगी में जान लिया था कि खुदा की बरकतों के बगैर मैं हकीकत में दौलतमंद नहीं बनूंगा। And then he passed on the blessings. और उसके बाद उसने अपनी बरकतें अपने दूसरों तक भी पहुंचा दी। 2 times in the last chapters, that is the 47th chapter of Genesis, the word of God says, and Jacob blessed Pharaoh. और पैदाइश की किताब आखिर में 47 चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि योसेफ ने याकूब ने फरो जो है फरो को बरकत दी थी। And God's word again says in Hebrews 7:7, और इब्रानियों की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 7 में खुदा का कलाम और एक बार वहां भी बताता है the lesser will be blessed by the greater. वहां पे लिखा हुआ है कि जो मैं पढ़ता हूं छोटा जो है वो बड़े से बरकत पाता है। Now who is this lesser here? तो यहाँ पे छोटा कौन बन गया? When we see that Jacob blessed Pharaoh, जब हम देखते हैं कि याकूब फरो को बरकत दे रहा है, obviously Pharaoh was the lesser. तो हमें तो पता चल गया कि फरो ही वहाँ छोटा बन गया The है। greatest king of the greatest nation that was existing in those days. उन दिनों में दुनिया के बहुत बड़ा शहंशाह जो थे या बहुत बड़ी सल्तनत का राजा या बादशाह जो थे वो याकूब के सामने छोटा बन गया। And who was Jacob? लेकिन याकूब कौन था? He was a mere shepherd. वो तो सिर्फ एक शेपर्ड था, मतलब जो चौपान था। That's our privilege. ये है हमारा इस्तेखाक। We are unknown in this world. हम तो इस दुनिया में नामवार नहीं हैं। No name, no fame. हम तो नामवार नहीं है, शानदार नाम हमारा नहीं है। But God's chosen us नाम और शान नहीं है, लेकिन खुदा ने हमें चुना है so that we can pass on His blessing to others. ताकि खुदा की बरकतें जो हैं वो हम दूसरों तक पहुंचा सकें। So the first altar he said was at Shechem. तो पहला मज़बा जो है या कुर्बान गाह जो है वो शेकेम में अब्राहम ने बनाया The था। meaning of Shechem means shoulder. शेकेम का मतलब होता है कंधा। It is the place of strength. कंधा क्या है? ताकत की जगह है। We place heavy things on our shoulders and carry. हमारे कंधों पर ही हम बहुत वजनदार चीजों को लाद कर ले जाते हैं। So probably Abraham must be saying to God, तो शायद ऐसा लगता है कि खुदावंद यहोवा से अब्राहम ने ये दुआ शायद किया था,
God, you are my strength. उस शायद वो कह रहा था कि ए मेरे खुदा, तू ही मेरा जोर है And you carry me through in my physical life and my spiritual life. और तू ही मुझे मेरी जिस्मानी और रूहानी जिंदगियों में मेरे आगे रहकर मुझे ले जा। So the first altar is a place of promise. तो पहली कुर्बान गाह जो है वो वादे का कुर्बान गाह है। It's a place of commitment. ये एक कमिटमेंट की जगह है, It's a place of worship. इबादत की जगह है। A place where God has shown us a grace. मतलब खुदा की रहमत हासिल करने की जगह है। And it's a place where we commit to God of our faithfulness. और हमारी फरमान बरदारी खुदा के सामने दिखाने वाली जगह है। All around the Canaanites were living. और वहाँ पे उन दिनों में उस जगह के इर्द गिर्द बहुत सारे कनानी लोग बसते थे। They were heathen gods. They were living blasphemous lives. उन लोगों के सामने, उन लोगों के दरमियान बहुत सारे माबूद थे और सच्चे खुदा को नहीं जानते थे वो लोग। But in the midst of all this, Abraham was showing it devotion to God. और इतने लोगों के दरमियान रहते भी अब्राहम सच्चे खुदा की इबादत करने वाला रहता था। So very early in his life, he has learned to commit himself to God. तो अपनी जिंदगी में शुरू में ही उसने खुदा को अपनी जिंदगी सौंपना क्या बात होती है वो सीख लिया था। And if God were literally present there, he would have embraced him. अगर खुदा जिस्मानी तरीके से वहां सच में होता तो उस जिस्मानी हालत में उसे शायद वो सीने में ले लेता। And he said, God, you are my friend. उसने खुदा से कहा, ए खुदा तू मेरा दोस्त है। In worship, we say the same thing. हम भी इबादत में यही कहते हैं, Lord, you are my friend. ऐ मेरे खुदाबंद, आप ही तो मेरे दोस्त हैं। The first altar represents our friendship with God. ये पहला मज़बा या कुर्बानगाह जो अब्राहम ने बनाया था, ये हमें खुदा के साथ ये दोस्ती जो है इस बात को झलकता We है। thank God for his call. खुदा का बुलावा जो है हमारे वास्ते, उस बुलावे को लेकर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। If not for his call, we definitely would have been lost in this world. अगर खुदा हमें बुलाया नहीं होता तो हम इस दुनिया में जरूर हलाक हो जाते। And God bound himself by making a covenant. और खुदा ने क्या किया था? अब्राहम के साथ अहद करके अपने आप को अब्राहम के साथ जोड़ लिया था। The new covenant with Lord Jesus Christ. लेकिन अब हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु में एक नया अहद हमारे साथ भी बांधा गया था। And the sign of the covenant is the blood of Lord Jesus Christ, blemishless. और इस नए अहद का या खुदावंद यीशु में जो नया अहद हमसे जो बांधा गया है उसका निशाना है खुदावंद यीशुआ का खून जो हमारे वास्ते बहाया गया है। Today we are a blessed people. आज हम कौन हैं? हम मुबारक लोग हैं। So let's worship him. इसीलिए हम उसकी इबादत करेंगे।